Ji, Assalamu alaikum everyone. It's good to see a good participation, and I hope everyone is fine. और everyone is back from the elections जो हो रहे थे और उसमें काफी गहमा गहमी और activities थी. So back to studies, I'm sure कि जो वो हो चुका है. और इसी सिलसिले में अब हम we'll try कि हम आपको मजीद motivate करें कि why do we want you to learn AI and machine learning. So I would like to keep today's session a little more interactive. कितने लोग हैं जो एलन मस्क को या टेस्ला को जानते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक भी है टेस्ला. कितने लोग हैं जो टेस्ला को जानते हैं? Anyone? जी. Okay. So there are few people who know Tesla. Okay, good. Would anyone like to describe? कोई कहता तो मैं जनाब जहाजेब, for example, let me unmute you and आप जो है थोड़ा सा describe करें. What is it that you know about Tesla? हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है. जी जी वैसा टेस्ला एज पर माय अंडरस्टैंडिंग टेस्ला इज एन renowned brand and it's an it's a automated vehicle, a vehicle which is autonomous, a driverless self self-driving vehicle. Okay, uh, good. and the, and the concept of this self-driving vehicle is based on entirely AI algorithms. Okay, that's good. That's a Yeah, fair description. yeah. Anyone else जो कि टेस्ला को बेहतर डिफाइन कर सके? Anyone else? या कोई अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन कोई बंदा दे सके? It would be great अगर हम इस सवाल से आगाज करें, because it will lead us to a good conclusion. Anyone जो समझता है कि टेस्ला को डिस्क्राइब करे? Oh, good. We have Fayaz. जी Fayaz. Fayaz, you can unmute yourself and describe. Sir, Tesla is a multinational company now because it is started from the USA, and they are started from the to make the electrical vehicles. Now they are multinational company in different countries of the world. They are started their own manufactured factories. Like they started in China. Now they are moved to start in the India and some others also. And they are started from the electrical vehicles, and now they are improvement, continuous improvement with latest technologies, and including the artificial intelligence also. Like started from the reverse parking. Now after that, auto driving and some other features also added. I don't know how many because I didn't use, but Alhamdulillah, as I know, like this. जी बिल्कुल, ये जो ना this is quite a better description. Why a better description? हालांकि तकरीबन इतनी इसी तरह की बातचीत जाजेब साहब ने भी की. But first of all, Tesla is not a car. Tesla is primarily a company. So Tesla was actually commissioned to design, but not autonomous vehicles initially, all electric vehicles. पहली चीज ये कि all electric vehicles, and then gradually, it steered its way from
an electric vehicle to a self-driving autonomous vehicle with many safety features, and not only many safety features, but many other features as well that have all now the basis or their roots in AI. So this is very important. But alongside, I will, during this lecture, I am going to describe how or what Tesla's electric car features are. So alongside that, I'm also going to describe how actually Tesla has transformed itself, and what is what is the area from which they are deriving their present and future value. What is their future target? So you'll be amazed to see what has actually happened. So I'm going to share my screen and my presentation as well. I've made a short presentation. So, okay, so I hope my screen is visible to you, and okay. So, okay, this is a problem. Disconnect the external display. Okay, so my screen, I hope, is visible now. Can anyone confirm in the chat? Okay, good. Thanks for your feedback. Okay, Ji. So, okay, I have to hide this also. So the title of today's presentation is how Tesla is using artificial intelligence to create the autonomous cars of the future. Let's see what it is doing. So the picture that is shown on the first slide or the title slide is an actual picture. How actually Tesla's different sensors try to interpret the environment. So you see that they are accurately boxing different cars, individuals, even the traffic signs. So they are capturing any information from the environment that may be relevant for its course of decisions for its driving. Okay. So Tesla primarily is a non-traditional car manufacturer company. This is somewhat that all of us know. मतलब हम सबको पता है कि टेस्ला की जो ब्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इलेक्ट्रिक कार होने में नहीं है. This is something जो हम सब लोगों को शायद थोड़ा सा किसी हद तक आइडिया है. So Tesla's key to success is that they are actually a technology company. This is something that I'm going to emphasize in the coming slides. So Tesla has been integrating AI into its cars since its inception and has developed some of the most advanced AI-powered features in the automotive market. So these features include Tesla's autopilot, which is autonomous driving के लिए use होता है, and they have the potential to reduce accidents, enhance the driving experience, and improve energy efficiency also. So आप देख रहे हैं कि ये 3 में है: safety, इकोनॉमी, एक्सपीरियंस. अगर मैं 3 लफ्जों में जो है वो इस टेस्ला के प्रिंसिपल को जो है वो आपको इंडिकेट करने की कोशिश करूं तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, देन एक्सपीरियंस एंड देन एफिशिएंसी. सो ऑटोनोमस व्हीकल अगर सेफ नहीं है तो ऑब्वियसली आपके किसी काम के नहीं. सो यू वांट टू डू एन ऑटो ड्राइविंग, you want to have an autonomous car, a self-driving car, a self-parking vehicle, बट ऐसी नहीं जो कि जाके कहीं पे वो किसी और गाड़ी के साथ टकराए, किसी और ऑब्जेक्ट के साथ टकराए. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस अगर आप टेस्ला की सिर्फ जो है वो 2023 तक सिंस इट्स इंसेप्शन अगर आप कार की सेल्स देखें द लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ तो आपको नजर आता है कि जी जो इसकी एनुअल सेल्स है दे आर टचिंग समवेयर अराउंड 1.4 मिलियन. There is a 15% increase roughly every year. And the sales now,
In 2022, they touched $80 billion. 2023, they were slightly lesser than $80 billion, from somewhere around $70 billion. Slight dip level. There are various factors, but अगर आप इसको compare करेंगे बाकी और cars के साथ, for example, Ford के साथ, GM के साथ, Chrysler और इस तरह की जो चीजें हैं, so you'll find that Tesla जो है, it is very well positioned in the market in which it is operating. So important बात ये है कि Tesla has actually shifted from cars to AI. So it started manufacturing cars, and its core business was cars. But while developing the technology for the cars, they shifted their business entirely to AI and robotics and software. This is very important. Now, AI, robotics, and software, they all are interlinked to one another in the modern world. And that is what redefines Tesla's identity. And this is what differentiates them and gives them the competitive advantage over the others. So AI, robotics, software. So the enabling technology everywhere is AI. So the value that Tesla is deriving today, the sales, the numbers it is putting up in the market, they are solely because it is a technology-driven company, and from those technologies that it is using, the max emphasis is on AI. So Tesla's superior margins stem from the brand power, vertical integration, automation, and challenging traditional automotive. So they have done some very superior innovations, which include the Tesla bot, Optimus robots that enhance efficiency. Now, these robots, right now, they are being used within the Tesla manufacturing center. So within the Tesla manufacturing machines, these robots. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर, कुछ समझ नहीं आ रही. Okay, आपको आवाज नहीं आ रही. This is strange. Is this a problem with others also? या सिर्फ आपको? Yes सर, हमें आवाज नहीं आ रही, आपका वॉल्यूम बहुत स्लो आ रहा है. क्या हो रहा है? Okay, let me see कि क्यों लगा ऐसा है. सर अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है, पहले नहीं थी. देयर वाज समथिंग इशू विद दैट. तो प्रेजेंटेशन मोड में इसका कोई मसला तो नहीं है. लेट मी ट्राई अनदर. ओके सर. गैजेट्स का जमाना है, हम भी गैजेट ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है उससे इंप्रूव हो जाए. So this is what is called user experience. जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि Tesla is providing experience. So वो user experience है. जी अभी can anyone tell कि कोई user experience बेहतर हुआ है आवाज का? Yes sir. नहीं, आवाज सही है. चल, that is good. Thanks for the feedback, क्योंकि हमें जो ना वो ज़ाहिर है जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है. Okay, so let's get back to screen sharing again. Okay, so ये important आप जरा एक sentence है. This is a quotation from Elon Musk that he uttered while delivering a keynote speech in the second annual AI Day in 2022 at Tesla. And it is that Tesla is not a car company. ठीक है जी, Tesla is not a car company. तो ये जो मैंने आज की जो टॉक का आगाज किया कि what is Tesla, और उनमें जो ना वो someone said it is a car, which is fair enough. जो old vision है वो यही है, they wanted to create a car, but then they transformed it from the car. Yani now they are no more actually focused on making a car. Car is the byproduct or one of the users of the technology that they're creating.
ठीक है जी. So अब जो नीचे वाली लाइन है, that is very important कि this bold vision completely reshapes the company's focus by prioritizing artificial intelligence, robotics, and software over traditional automotive pursuits. Tesla sets itself apart from the rest of the industry and uses its differentiation as a moat. ठीक है जी. So basically AI is the driving factor. One more piece of information जो कि मैं आपको देना चाहूंगा. आप में से कितने लोग हैं जो सैम आल्टमैन को भी जानते हैं? Who is Sam Altman? Sam Altman is the CEO of OpenAI company. It was the former CEO of the OpenAI. Now is joining the Microsoft new AI project. Yeah. नहीं, मेरा ख्याल है वो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसके वो निकाल नहीं सका और Yeah. अल्टीमेटली पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो फायर हो गया. नाउ Fire. ही एज द सीईओ ऑफ द कंपनी. और ये वो कंपनी है जो और लोग नहीं जानते, जिन्होंने के एक्चुअली क्रिएट किए है, चैट जीपीटी क्रिएट किया है. ठीक है जी. Yes. और अभी वो जीपीटी 5 लॉन्च करने के बारे में बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि it will obviously be very far from artificial general intelligence, but yet it is going to be something leap ahead from GPT-4. यानी 2022 के एंड में जो उन्होंने लॉन्च किया था, 2024 में जो आएगा वो उससे काफी ऊपर चला जाएगा. आप लोगों ने एक और चीज नोट की होगी, आपको आजकल जिन लोगों के पास विंडोज 11 है, उनकी अब जो रिसेंट अपडेट्स आई हैं उसमें को पायलट जो माइक्रोसॉफ्ट का है, जो कि यही बेस्ड है ओपन एआई का, जो GPT-4 बेस्ड है, वो इंटीग्रेट हो गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. अब आपको ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है चैट जीपीटी से बात करने के लिए. आप डायरेक्टली वहां से कर सकते हैं. किसी ने नोटिस किया ये चीज? Yes, sir. दैट्स गुड. तो So it is now Windows 10 की अपडेट में भी आ गया ये यस लेटेस्ट सर, अपडेट. ये विंडो 10 में भी आ गया. 10 में भी आ गया. ओके, सो आई हैव 11. आई थॉट दैट मे बी ये अभी इन्होंने 11 में दिया है. और आगे विंडोज 12 जो है वो आ रही है. और जो विंडोज 12 की खूबसूरत बात ये है कि विंडोज 12 जो है वो शायद आएगी कहीं पे सितंबर अक्टूबर में आएगी, बट इट इज इंटायरली नाउ रीडिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एआई. यानी पहले ये होता था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है और वो एआई को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है. नाउ एक्चुअली इट इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एआई, और अब हर चीज जो है वो, हर फंक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है. सो दिस इज अ वेरी जो ना वो इंटीमेट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, जिसका कि हमें जो है वो पता होना चाहिए. इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब नई विंडोज 12 अब आएगी तो आपके जितने प्रायर लैपटॉप्स हैं ये बेकार हो जाएंगे. इट विल नीड एटलीस्ट 16 GB ऑफ रैम, एटलीस्ट. सो अभी जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, अभी उन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स को मसला पड़ा हुआ है कि उन्होंने जो है वो चीप एंड अफोर्डेबल जो है वो लैपटॉप्स या डेस्कटॉप सिस्टम्स देने हैं जो कि आम आदमी अफोर्ड कर सके. एंड देन देयर इज अनदर जो है वो चेंज व्हिच इज कि the Windows actually company Microsoft is actually trying to rewrite their operating system into Rust. पहले ये C में लिखा हुआ है, तो उसकी अब एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए Rust में जा रहे हैं. सो अगर कोई लैंग्वेज जो कि फ्यूचर में जानी है, that is certainly going to be I can say with safety there are 4 things जो कि जो है वो फ्यूचर में जा रही हैं. C obviously क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम्स ना खत्म हो रहे हैं और ना जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स का इस्तेमाल जब वो होगा, IoT एम्बेडेड सिस्टम्स. बाय द वे आई विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स आल्सो, बल्कि मैंने YouTube के ऊपर अपना एक मैथ लाइफ के नाम से मेरा एक चैनल है, मैंने उसमें लॉन्च भी कर दिया है. सो जो है वो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा अपडेट होते जाएंगे. सो दोज ऑफ यू वांट टू टेक अ लुक एट द फ्री वर्जन, तो वो उसको भी देख सकते हैं. एंड लेटर ऑन हम उसके जो फिर एडवांस वर्जन है वो हम नाफी के प्लेटफॉर्म से जो है ना वो हम लॉन्च भी कर देंगे, एक प्रॉपर लैब्स और इस तरह की चीजों के साथ. बाय द वे, टू सम अप मैनी थिंग्स जो कि मैंने स्टार्ट कर दी. विंडोज भी बीच में आ गई, सैम आल्टमैन का नाम आ गया, और पीपल आर स्टिल एक्चुअली थिंकिंग कि सैम आल्टमैन बीच में क्यों आया था. सो सैम आल्टमैन बीच में इसलिए आया था बिकॉज एक्चुअली ओपन एआई जो है वो किसी वक्त जो स्टार्ट की थी वो एलॉन मस्क ने की थी. एंड देन
उसने जो है ना वो अपनी और चीजों की तरफ, जैसे कि स्टारलिंक और रीयूजेबल रॉकेट्स एंड टेस्ला और इस तरह की चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए ही एक्चुअली लेफ्ट ओपन एआई। ठीक है, तो ये तो चीज इसलिए थी, और विंडोज वाली बातचीत इसलिए थी कि जो है ना वो अब आप जो है ना आप चाहे आप एआई को समझते हो या ना समझते हो, यू विल बी अ यूजर ऑफ एआई इन 2024। मतलब 2023 में भी अगर किसी ने लेट्स से कि चैट जीपीटी नहीं यूज किया, नो इश्यूज, लेकिन 2024 ऑनवर्ड एनीवन हु विल बी यूजिंग अ मोबाइल फोन और डेस्कटॉप पीसी फॉर एनीथिंग, तो वो जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में एआई के ऊपर जो है वो रेस्ट कर रहा होगा। सो दीज आर द रीजंस। देखिए ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज विदाउट एनी रीजन इतनी बड़ी स्विच नहीं करती कि $80 बिलियन पर एनम का रेवेन्यू है। अगर उसको प्रॉफिट्स में देखें तो ना करते हुए भी कम से कम $20-30 बिलियन का तो प्रॉफिट होगा जो कि कंपनी अर्न कर रही होगी पर ईयर। नाउ $20-30 बिलियन से कंपनी अर्न कर रही है कार को सेल करके, और उसी कार की ओनरशिप नहीं ले रही कि ये हमारी जो है वो हमारा बिजनेस है। जैसे ये हमारा बिजनेस नहीं है, वी आर नॉट अ कार कंपनी। इजंट इट स्ट्रेंज? आपने किसी ने वो मूवी देखी हुई है फरारी वर्सेस लंबरगिनी? लंबरगिनी किसी ने मूवी देखी हुई है? नो लंबरगिनी सर। इटालियन कार देखिएगा, इट्स अ लाइट वेट सी बड़ी मजेदार सी मूवी है। So Lamborghini was actually a tractor company, ठीक है जी। बट उसका जो ओनर था वो जो है ना वो फार्मर था, और बचपन से उसको जो है ना वो ट्रैक्टर्स और इंजन और इस किस्म की चीजों का शौक था, और वो एक दफा फरारी के जो है वो गया हेड के पास और उसे कहा कि जी आई हैव डिजाइन जो कि जो है ना वो बहुत अच्छी कार बना सकते हैं। सो उसने उसको ह्यूमिलेट किया। उसका नाम अपना नाम लेम्बोर्गिनी था। सो उसने फिर वो कंपनी क्रिएट की जिसने कि लैम्बोर्गिनी जो है वो क्रिएट की, और लैम्बोर्गिनी पर जो है ना उसने फेरारी को बहुत पीछे छोड़ दिया। एंड देयर अगेन यू विल सी कि ये वो लोग हैं जो कि अपने वक्त से आगे देखते हैं। सो एलन मस्क को आप जो है वो देख सकते हैं, एक वक्त था कि रीयूजेबल रॉकेट, इट वाज समथिंग जो कि जिसके ऊपर बिलीफ ही नहीं था किसी का कि रीयूजेबल रॉकेट, या लेट्स से कि इतना पैसा किसके पास होगा कि वो स्पेस मिशन लॉन्च करेगा, और वो प्राइवेट एंटिटी होगी। बिकॉज प्राइवेट एंटिटी जब कोई काम करती है तो इट इज मोर एफिशिएंट। गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है तो सारी दुनिया की गवर्नमेंट, सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है वो हमेशा इनएफिशिएंट होती है। सो ये किसने सोचा था? स्टारलिंक किसने सोचा था कि जी देयर विल बी अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, और दुनिया में हर जगह पे इंटरनेट जो है वो एक कंपनी दे रही होगी थ्रू देयर सैटेलाइट्स। तो अब आप ये जो पाकिस्तान में होता है कि जी कभी केबल कट गई, कभी कुछ हो गया, वो सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। यू विल नेवर हैव एन इंटरनेट ब्लॉकेज। मतलब, और इसके नुकसान भी है। अब आपकी गवर्नमेंट कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी इंटरनेट की जो है ना वो अवेलेबिलिटी को दुनिया में, पाकिस्तान में। सो ऑल इन ऑल अगर ये देखा जाए तो हु वुड हैव थॉट। सो ये जो इन 2-3 स्लाइड्स के अंदर जो मेरा एम्फेसिस पॉइंट है, इट्स नॉट कि टेस्ला में क्या फीचर्स है, वो तो आप भी जाके पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। इट्स वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड। द थिंग टू कॉम्प्रीमेंड है कि एलॉन मस्क का जो फोकस है वो क्या है, हाउ ही सीज द फ्यूचर। सो ही सीज द फ्यूचर इन एआई, in robots that are assisting the human beings, and the software that will be used to create them. ठीक है, हार्डवेयर तो ऑब्वियसली हो गई होगा, but since we are not dealing with the hardware, we are dealing with the software. So AI and embedded systems जो मैं पढ़ाऊंगा, that is also part of the same series. And finally software. So this is something that I wanted to emphasize today कि जी क्यों हम बार बार आपको कह रहे हैं कि AI is the future, AI is the future। ठीक है, सो लेट्स से एक दो छोटी सी एग्जांपल्स और देता हूं आपको। आज एक कंपनी ने हमारा जो ना वो एक एआई बेस्ड अपैरल फोटोशूट जो है वो लॉन्च किया है। दिस इज द फर्स्ट एआई बेस्ड फोटोशूट लॉन्च इन पाकिस्तान एवर। सो इसमें हुआ क्या है कि बेसिकली कंपनीज पहले ये करती थी कि उन्होंने अगर अपने जो ना वो समर्स आ रहे हैं, समर्स के लिए लेट्स से कि
लेयर क्लब ने, सपोज कंपनी है, लेयर क्लब ने अपने जो ना वो 800 डिजाइन बना लिए, ठीक है जी, बच्चों के भी और बड़ों के भी, अब और मुख्तलिफ कलर्स में। अब उन्होंने क्या करना है कि उसको फोटोशूट करना है। अब उसके फोटोशूट के लिए बहुत ही कंट्रोल्ड किस्म की लाइटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स चाहिए जो कि बड़ी आइडियल किस्म की जो है ना वो बॉडी रखते हो, क्योंकि वही लोग अट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली। अगर कोई ऐसा बंदा चला जाएगा जिसकी वेस्ट जो है ना वो 42 है और जो है ना वो एक प्रोट्रूडिंग किस्म की बैली है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। सो उन्होंने ऐसे जो है ना वो चंद लोग रखने हैं जो कि जो है ना वो आइडियल किस्म की ह्यूमन बॉडी जिसको हम डिफाइन करते हैं वो हो, बड़ा फेयर कंप्लेक्शन हो, या जो है ना वो, और फिर ऐसे किस्म के जगह पे हो, लेट्स से कि एक सहरा में जनाब एक साहब खड़े हुए हैं, बिल्कुल उनको कोई पसीना नहीं आया हुआ, इंतहाई जो है ना वो गुड लुकिंग हैंडसम किस्म का वो साहब है, उन्होंने एक टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है और जूते उतारे हुए हैं से जो है ना वो। इसी तरह समवन लेट्स से एट द बीच जिसमें कि साइड पे सनसेट हो रहा है और उसकी ऑरेंजिश किस्म की लाइट आ रही है। सो अब आप ये देखिए कि इस किस्म के फोटोशूट्स क्रिएट करना, फिजिकली करना, इट इज वेरी 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 एक्सपेंसिव। ऑन दी अदर हैंड, अब आपको एआई ये फैसिलिटी देती है कि आप जिस किस्म का मर्जी चाहे सीन और इवन बंदा जनरेट कर ले। सो यू टेल देम, लेट्स से यू टेल मिड जर्नी, ठीक है जी, यू टेल स्टेबल डिफ्यूजन that I need an Asian male aged between 20 and 25, clean shave, with a nice, with nice dark hair, fresh haircut, ठीक है जी, light या let's say light beard, ठीक है, whitish to white complexion, ठीक है, physically very fit, ठीक है, muscular body, ये सारी आप डिस्क्राइब करें, स्टैंडिंग ऑन अ बीच विद जो है ना वो विद लाइटिंग इन द बैकग्राउंड। सो ये मैंने एक बड़ी डिटेल्ड किस्म की डिस्क्रिप्शन दे दी। सो एआई आपको ये सब कुछ जनरेट कर देगी, ठीक है जी। नाउ कैन एनीवन थिंक कि इस सारे का फैशन कैंपेन के साथ क्या ताल्लुक है? मैंने जो ये सारी डिस्क्रिप्शन दे दी, इसमें बंदा तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन इसका फैशन कैंपेन से क्या ताल्लुक है? ओके, लेट मी डिस्क्राइब। तो फैशन कैंपेन से ये ताल्लुक है कि अगर अब इस पे जो बंदा जनरेट होगा उसने कोई भी टी शर्ट, कोई भी कपड़े पहने हुए होंगे जो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, बट जो कपड़े आपने डिजाइन किए हैं, अगर आपके पास ये एबिलिटी आ जाए कि आप वो कपड़े इस ये मॉडल जो एआई ने जनरेट किया इसको पहना दें, तो आपकी फैशन कैंपेन में जो एक एक्सपेंसिव वीडियो शूट होती थी, वो एक्सपेंसिव वीडियो शूट जस्ट एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट होगी टू द इमेज जनरेशन एआई मॉडल्स। सो इसमें जो हमारी जो मेहनत है वो ये है कि स्टेबल डिफ्यूजन ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी आर डेवलपिंग अ मॉडल जो कि उस कंपनी का लेयर क्लब की बनाई हुई टी शर्ट ले और उस टी शर्ट को एक्यूरेटली इस जो एआई जनरेटेड मॉडल है इसको इस तरीके से पहना के दिखा दे कि उसमें जो जहां जहां पे उसमें रिंकल्स आनी चाहिए वो वैसे ही नजर आए, उस कपड़े की जो लाइटिंग कंडीशंस हैं, जो टेक्सचर है, जो डिजाइन है, वो चेंज ना हो, ठीक है जी। इसमें हम किसी हद तक कामयाब है और कुछ चीजें जो है ना वो दे आर स्टिल बीइंग वर्कड आउट, बट हम इस काबिल हो गए हैं कि एटलीस्ट विद सम मैनुअल एफर्ट, सम एआई बेस्ड एफर्ट, हम जो है वो ये हमने एक वो जनरेट कर दिया, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। आई एम श्योर कि आप लोग बड़ा जो ना इससे फैसिनेट होंगे कि यार मतलब व्हाट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। और अब इस एप्लीकेशन ऑफ एआई में आप सोचिए कि इसके ऊपर इसमें कितने पैसे इन्वॉल्व हैं। यानी एक दफा इफ वी आर एबल टू डू इट, तो सिर्फ पाकिस्तान में आप सोचें कि कितनी फैशन कंपनीज हैं जिनको कि ये चाहिए होगा। सो इन्यूमरेबल। फिर उससे अगला स्टेप चला जाएगा कि अच्छा जी आप वीडियो भी जनरेट कर दें, ठीक है जी। फिर उसके बाद सिर्फ इसका नहीं, फिर हर चीज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो एआई बेस्ड होना शुरू हो जाएगी। भाई मॉडल को हायर करें, पैसे दें, शूट कराएं, एडिट कराएं,
उससे बेहतर है कंप्यूटर के ऊपर बैठे, जिस तरह से एनिमेटेड वीडियोस जो है ना वो पॉपुलर होना शुरू हो गई हैं। सो क्या होगा कि जिस तरह जब मशीन बेस्ड सारी चीजें बनना शुरू हुई, तो फिर जो हैंडमेड चीजें हैं ना वो बड़ी कम रह गई और वो बड़ी एक्सपेंसिव हो गई, और वो बड़ी जो है ना वो अब डेलिकेसी समझी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हैंड स्टिच्ड सूट, ये अब जो है ना वो आपको अगर कहीं किसी को जाके बताएं कि जी ये मेरा हैंड स्टिच्ड शूज है, मेरे ये हैंड स्टिच्ड लेदर है जो कि जो है ना काफ लेदर से बना हुआ है या डियर लेदर से बना हुआ है, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम। $1000 का बेच सकते हैं आप एक ऐसा वॉलेट बना के जो कि हैंड स्टिच्ड हो, लेदर किसी जो है ना वो इस तरह की जगह से जो है ना वो ऑब्टेन किया गया हो। ठीक है, सो ये एआई के दौर में जो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो कि फिजिकली ह्यूमन बीइंग से कराए जाएंगे, वो ना सिर्फ ये कि बहुत कम हो जाएंगे बल्कि वो जो है वो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाएंगे। सो फ्यूचर में एआई एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी अभी मैं जब अपने साथ काम करने के लिए एआई के एक्सपर्ट्स की जरूरत को तलाश करता हूँ, आई नीड लेट्स से कि 1 पर्सन राइट अवे जो कि एआई में काम कर सकता हो। somebody approached me कि जी मैंने डेटा एनालिटिक्स और इस किस्म की चीजों में काम किया हुआ है। मैंने उसको एक काम कहा कि अच्छा जी ये काम कर लिए, करके मुझे दिखा दें, इफ यू नो हाउ टू डू इट यू विल गेट द जॉब, you at least know the steps how to do it, even then you get the job। उसके बाद वो गायब हो गया, दैट्स इट। सो जो 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 नॉर्मल काम है, एक कहना चाहिए कि मीडियोकर काम है, वो करने वाले लोग बहुत हैं, अच्छा काम करने वाले लोग काम हैं। So this is one example that I wanted to share. Now let's get back to Tesla कि टेस्ला जो है ना वो एआई में कैसे है। So सबसे पहले तो इसका ऑटो पायलट, ठीक है जी, जो कि एआई एल्गोरिथम्स को यूज करता है, कार के सेफ्टी फीचर्स को जो है ना वो इम्प्रूव करता है, ड्राइवर को असिस्ट भी करता है और ऑटो ड्राइव भी करता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेडेस्ट्रियन जो है ना वो रोड के ऊपर आ जाता है तो कैमरास की मदद से उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, और सिर्फ उसको डिटेक्ट नहीं किया जाता, उसका मोशन प्रोफाइल बनाया जाता है कि वो किस तरफ को जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे ही कोई पेडेस्ट्रियन सामने रोड पे आएगा तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, नो, गाड़ी चलती रहेगी और उसको अवॉइड करके बाईपास करके निकल जाएगी। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ लेट्स से कि इट डज कि आगे इसको नजर आ रहा है कि मेरे यहाँ पे सामने जो है वो यहाँ पे एक व्हीकल है, दिस इज वेयर आई हैव सम एम्प्टी स्पेस। सो ये रेड कार जो है वो आपकी यहाँ से हल्का सा लेफ्ट में स्टीयर करके और इस लेन में आ जाती है। ठीक है जी। Then summon. Summon is a feature in Tesla's autopilot system that allows drivers to remotely move their vehicle, यानी अपने पास बुलाने के लिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपकी गाड़ी, लेट से कई दफा ऐसा होता है ना कि हम मार्केट जाते हैं, मार्केट बहुत बड़ी है तो हम पैदल चलते 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 2 किलोमीटर आगे चले जाते हैं। अब जब शॉपिंग सारी पूरी हो जाती है उस टाइम के ऊपर जब गाड़ी के पास वापस जाना होता है तो फिर सबको जो है ना वो बड़ा तकलीफ दे एक वो अमल होता है। और उसमें कई दफा ऐसा होता है कि जो मर्द हजरात है वो फैमिलीज को कहते हैं कि आप लोग यहीं रुके, मैं गाड़ी यहीं ले आता हूँ। तो वो फिर ऑल द वे 2 किलोमीटर जाता है, गाड़ी लेता है, लेकर आता है और यहाँ से जो है फिर सारी फैमिली उसमें पैकअप होके हो जाती है। सो अगर आपके पास टेस्ला है तो यू कैन अवॉइड दैट। बैटरी मैनेजमेंट जो ऑब्वियसली इनका फोर्टे है क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंसी पे बिलीव करते हैं, सो दे यूज एआई एल्गोरिथम्स टू प्रेडिक्ट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, और उसमें वो स्पीड, टेरेन, वेदर, इन सब चीजों का जो वो ख्याल रखते हैं और उस हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। द नेविगेशन ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए, नेविगेशन तो अभी भी आप गूगल बेस्ड नेविगेशन भी यूज करें तो वो बहुत अच्छा जो है आपको गाइड करता है, बट इनकी नेविगेशन और बेहतर है बिकॉज इट यूजेस द रियल टाइम ट्रैफिक डेटा और इसको मिक्स करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से और आपको बेस्ट राउट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। दिस इज इंटरेस्टिंग, एडाप्टिव सस्पेंशन। सो सस्पेंशन जो है वो भी एआई बेस्ड है, ठीक है जी, और वो क्या करती है कि वो अपनी सस्पेंशन को रोड कंडीशन के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर जो है वो बम्पी रोड है तो वो फिर अपनी सस्पेंशन को थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट करती है ताकि आपको कंफर्टेबल राइड मिले, और अगर स्मूथ रोड है तो फिर वो अपनी सस्पेंशन को थोड़ा सा हार्ड कर लेती है। डॉग मोड अनदर इंटरेस्टिंग फीचर जो कि कार के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को यूज कर जो है वो पेट्स को
कंफर्टेबल रखने के लिए, कि अगर आप लेट्स से कि चले भी गए हैं, किसी ने अपना पेट जो है ना वो गाड़ी में छोड़ा हुआ है, तो पता लगे कि आप कहीं जाके भूल गए, 2-3 घंटे के बाद वापस आए, तो उतने में आपका जो पेट है उसकी बेचारे की हालत खराब हुई। तो दिस मे नॉट बी मोर रेलेवेंट टू अस इन पाकिस्तान दीज डेज, बट मेरा ख्याल है कि जो हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, तो कुछ अरसे में पाकिस्तान में कुछ बूढ़े लोग और उनके पेट्स ही रह जाएंगे। जो जवान लोग हैं आपकी तरह के, वो सारे जो है वो पाकिस्तान से निकल जाएंगे। देन एआई एंड रोबोटिक्स से टेस्ला जो है वो सिर्फ टेस्ला कार की हद तक महदूद नहीं है, इसकी और बड़ी जो है ना वो चीज है। सो दे आर वर्किंग ऑन फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर, एफएसडी सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। तो एफएसडी सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली ये इसलिए बनाया गया है कि ये जो है वो जो आगे इसके लिए एआई बेस्ड जो चिप्स बनानी है, उन चिप्स को बनाने के लिए जो है ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। और उसमें क्या करता है, इट ट्राइज टू इम्प्रूव देयर आर्किटेक्चर एज वेल। अब उसमें कौन कौन सी चिप्स शामिल है, एक डोजो सिस्टम है, ठीक है जी, और ये नेक्स्ट जनरेशन मशीन लर्निंग कंप्यूट फॉर डेटा सेंटर्स है, जो कि डेटा सेंटर्स में, अब आप ये देखिए कि इसका एज सच डायरेक्टली टेस्ला कार से ताल्लुक नहीं है। जिस तरह एनवीडिया जो है वो आपके बनाता है जो जीपीयूज बनाता है, और वो जीपीयूज आपके जाते हैं एआई बेस्ड सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए। सो ये उसके उस बिजनेस में दे आर एंटरिंग। देन जो है ना वो न्यूरल नेटवर्क्स, उसके ऊपर इनका कंप्यूटर विजन के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। दिस इज अ वीडियो जो कि जो है ना वो शो कर रही है, और किस तरह जो है ये देखिए, दिस इज एन एक्चुअल वीडियो टेकन फ्रॉम अ टेस्ला कार ड्यूरिंग टेस्टिंग। और ये हर चीज को रिकग्नाइज कर रही है, उसकी डिस्टेंस रिकग्नाइज कर रही है, ठीक है जी, उसको टैग्स दे रही है, खुद से स्टॉप होती है, जाती है। इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। टेस्ला बॉट, so they are creating bots. This is a robot that they call Bumblebee, Optimus. ये जो है ना वो ट्रांसफॉर्मर्स के कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, बट ये ना सिर्फ टेस्ला की अपनी कंपनी में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, बल्कि ये कुछ अर्से बाद ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है वो इंसानों की हेल्प के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। This is where they are working for their future. So we will end this presentation on this final quotations that Tesla's transformation from a car manufacturer to a tech leader in AI, robotics, and software shapes the company's competitive edge and potential for groundbreaking efficiency gains within their factory and for their customers also. ठीक है जी, so with this, I thank you all, and I hope कि हमने इस प्रेजेंटेशन में कुछ नई जो है ना बातचीत सीखी। वी वर एबल टू मोटिवेट आवरसेल्व्स कि क्यों जो है वो जो फ्यूचर है वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और क्यों जो है वो हमें पढ़ने लिखने की जरूरत है। अगर नहीं पढ़े लिखेंगे, ये जो हम हमसे जो करवाने की कोशिश की जाती है ना कि स्किल्स ले लें, स्किल्स ले लें, स्किल्स ले लें, वो स्किल्स लें, लेकिन स्किल्स विद अ डिग्री टाइटल लेना जरूरी है। रिमेंबर, सिर्फ स्किल्स लेंगे हमेशा अंडर पेड रहेंगे, काम बेशक अच्छा कर रहे हो। स्किल लें विद जनब वो विद अ प्रॉपर जनब वो डिग्री टाइटल। फॉर एग्जांपल यू डू अ डिप्लोमा हियर, एंड देन यहाँ से आप जो है वो जाएं जो एजुकॉल का एग्जाम दें, एजुकॉल के एग्जाम को क्लियर करें, सो यू गेट अ गुड रिकग्निशन ऑफ योर डिग्री फॉर पाकिस्तान, फॉर अब्रॉड बोथ, ताकि आपको बेहतर काम करने का मौका मिले, ठीक है जी, बेहतर जॉब्स मिले, आप अच्छे बिजनेसेस कर सकें। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे प्लीज आस्क। सर, जो एआई ऑप्स का डिप्लोमा है उसमें हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे?
ओके, सो एआई ऑप्स के डिप्लोमा में जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि साथ साथ जो है ना वो किए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एक कोर्स है एडवांस टॉपिक्स इन मशीन लर्निंग, ठीक है। तो एडवांस टॉपिक्स इन मशीन लर्निंग में कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स को यूज किया गया है फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस यूजिंग द रेडियोलॉजी इमेजेस, ठीक है। स्टॉक मार्केट प्राइस प्रिडिक्शन के लिए यूज किया गया है एलएसटीएम को, ठीक है। और इस तरह की एरिमा मॉडल्स को और टाइप की चीजों को। देन जो नॉर्मल डीप लर्निंग का कोर्स है उसके अंदर भी इसी तरह से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू जो है ना वो कुछ प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेड है। सो रिमेंबर, एक चीज आपने गौर करनी है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं या ये जो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट यू अंडरस्टैंड इन द कोर्सेज। सो आपका जो फोकस होना चाहिए, ये मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताता हूँ, आपका जो फोकस होना चाहिए वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स एंड मैथमेटिक्स। सो इफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड मैथमेटिक्स वेल, भरा हुआ इंटरनेट जो है ना वो ट्यूटोरियल से कि जो है ना वो ये लेट्स से कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आ जाए जी, हम आपको काम करवाते हैं। So I myself, for example, taking a course which is PyTorch from zero to mastery from Udemy, ठीक है जी। Now when I see that, तो वो क्या करता है कि सीधा पहले PyTorch को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है एक जो है सेट ऑफ लेक्चर्स में, फिर एक लंबा लेक्चर जो है मशीन लर्निंग के एक मॉडल को कोड करने के ऊपर दे देता है। But the problem he is facing is since he is trying to cover that course without mathematics, तो वो फंस जाता है। और वो विदाउट मैथमेटिक्स जब चीज को बताने की कोशिश करता है, ही इज अनएबल टू एक्सप्लेन। वो मुझे तो इसलिए समझ आता है बिकॉज मेरी जो है वो एक्सपर्टीज है। मैं तो सिर्फ पाईटॉर्च का एक उसका पोर्शन है जिसको देखने के लिए ये सारा जो है वो कष्ट काट रहा हूँ, अदरवाइज आई डिड नॉट नीड टू। सो वहां पे मुझे बड़ी लिमिटेशन उसकी जो है वो महसूस होती है कि दिस इज वेयर ही इज स्ट्रगलिंग। ही इज अ गुड टीचर, ही नोज हिज सब्जेक्ट, बट वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि लेट्स से कि जना वो क्या है जी ये स्ट्राइडिंग का मतलब क्या है, लेट्स से कि जना मैक्स पुलिंग की लेयर क्या करती है, कर्नल जो वो क्या है। सो ये वो चीजें हैं जो कि हमने आपको जो है वो यहाँ पे बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किए, फिर उसको कोड भी करना सिखाया। सो हमने आप वी हैव ट्राइड टू गिव यू एन एक्सपीरियंस जो कि एक प्रॉपर आपको यूनिवर्सिटी के कोर्स के अंदर आपको मिलना चाहिए। So it will become definitely a little tougher, but I'm sure कि आपको जो है ना वो इसका एडवांटेज होगा अगर आप इसे करते हैं तो। जी, anyone else with another question? सर इट्स मीन दैट कि हमें स्टार्ट स्क्रैच से एक मॉडल ट्रेन करना सिखाया जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉम बेसिक्स। सर और इसमें जो ये जो अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जॉब्स हैं उसमें कोई डाटा स्ट्रक्चर का रोल भी है, मतलब इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है? डेटा स्ट्रक्चर जो है ना अब थोड़ा सा जो बैकग्राउंड में चला गया, उसकी वजह ये है कि अब जो लाइब्रेरीज आ गई है ना वो इतनी एफिशिएंट है। लेट्स से कि पाइथन जो है, पाइटॉर्च या टेंसर फ्लो, ये एआई के अंदर मैक्सिमम काम होता है टेंसर्स के अंदर, ठीक है जी। अब टेंसर इज एन एडवांस काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। अदर देन दैट अगर आप बात करें कि जी लिस्ट्स हैं, अरेज हैं, सेट्स हैं, मैप्स हैं, ये सारी की सारी चीजें पाइथन के अंदर बिल्ट इन है। सो यू डोंट नीड टू क्रिएट देम। उनके हर टाइप के फंक्शंस भी जो है ना वो उसके अंदर लिखे हुए हैं, सॉर्टिंग के फंक्शंस लिखे हुए हैं, सर्च के फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। सो चूंकि वो सब फंक्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं तो यू जस्ट नीड टू यूज दोज फंक्शंस। हाँ, मैं समझता हूं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग होना इज एन एडवांटेज डेटा स्ट्रक्चर्स की, बट अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो गुजारा चल जाएगा। सर एक सवाल पूछा था, जी अभी आपने जिक्र किया स्टॉक प्राइसेस प्रिडिक्शन के लिए भी प्रोजेक्ट है, वो किस तरीके से डाटा साइंसेस बेस होगा या बॉट बेस, या जिस तरीके से नैस्डैक वगैरह में एल्गोरिथम यूज करते हैं उस तरीके से क्या उसकी एल्गोरिदम मॉडलिंग है, होगी सर? एल्गोरिदम्स है, मूविंग एवरेज है, ठीक है, अरिमा है, ऑटो अरिमा है, और फिर एलएसटीएम है। So it is actually designed to display the effectiveness of various types of algorithms. So there you'll see कि जी LSTM जो है ना वो बड़ा effective algorithm है for time based ये time series analysis. क्योंकि मैं इस वक्त सऊदी
बेस्ड हूँ और हम यहाँ पे बैठ के सुनते हैं कि नैस्डैक में एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग होती है, जी तो सेम फिनोमेना होगा। अच्छा, this will not be exactly 100% the same thing, but it is something in that direction. ठीक है जी, it is something in that direction. ये एक जो है ना exactly वो इसलिए नहीं है कि इंडस्ट्री जब कोई काम कर रही होती है तो वो उन एल्गोरिथम्स को पब्लिक के लिए जो है ना वो रिलीज करती है बड़ा बाद में, यानी कि जब वो उससे अगले मॉडल पे जा चुके होते हैं, उससे ज्यादा एफिशिएंट चीज पे जा चुके होते हैं। बट जो जो चीज है उसका प्रिंसिपल जो है ना वो एसेंशियली सेम है कि आपने पास्ट डेटा को देखते हुए फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है। ठीक, हिस्ट्री बेस्ड। जी जी ओके जी, anyone else? सर, इन वन ऑफ योर सेशन आपने कहा था कि किसी भी डीप लर्निंग एल्गोरिथम को जब आप उसको स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो पहले तो आप उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हैं, उसके बाद उसकी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को देखते हैं और फिर उसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। जी तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैथमेटिकली इक्वेशन बैलेंस्ड है तो जी वो साइमल्टेनियसली उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में और कोडिंग में, या कुछ इसमें फर्क हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही आएगा। देखिए कि बेसिकली आप जब जो है वो मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का मकसद क्या है, तो इसको आप यूं समझिए कि लेट्स से सपोज कि आपको ना आपने कैरम बोर्ड हम में से सबने खेला हुआ है, ठीक है, उसमें एक ब्लैक कलर की जो है ना वो पीसेस होते हैं और एक वाइट कलर के पीसेस होते हैं, ठीक है। सो सपोज कि कोई आपको कहता है कि जी ब्लैक और वाइट पीसेस को आपस में अलहदा कर दो, ठीक है जी। ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज कि आप उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई आपको उसके बाद पूछे कि जी ब्लैक पीसेस कहाँ है और व्हाइट पीसेस कहाँ है, तो यू विल बी रफली एबल टू इंडिकेट अ लाइन ड्रॉन बिटवीन देम, जबकि वो पीसेस सारे कैरम बोर्ड पे ही पड़े हुए हैं। तो आप एक लाइन ड्रॉ करने के काबिल हो जाएंगे और कहेंगे कि रफली इस लाइन के राइट साइड पे ब्लैक पीसेस है और लेफ्ट साइड पे व्हाइट पीसेस है, ठीक है जी। नाउ मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट finding that line which separates the black from the white, which separates the cats from the dogs, ठीक है। एंड जब आप सिर्फ दो चीजों की बात करते हैं तो इट इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बट जब आप इससे ज्यादा की बात करते हैं, जैसे कि योलो की लाइब्रेरी है जो कि 1000 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है इन द पिक्चर्स, सो दैट्स अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो कि हमने जो है वो डिस्कस की हुई है एडवांस टॉपिक्स वाले कोर्सेज में। सो अब जब आपने ये जो लाइन में कह रहा हूं, ये जब आप हायर डायमेंशंस में चले आते हैं तो सरफेस की बात करते हैं, तो देयर इज अ सेपरेटिंग सरफेस बिटवीन द व्हाइट पीसेस एंड द ब्लैक पीसेस। तो इस सरफेस की इक्वेशन निकालना इज द मैथमेटिक्स, इस सरफेस की इक्वेशन को विजुलाइज करना ग्राफिकली दैट इज ज्योमेट्री, और फिर इस सरफेस की इस लाइन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखना कि अच्छा मैं कौन से पैरामीटर को छेड़ूंगा तो उससे ये लाइन किस तरफ को मूव करेगी या कैसे बिहेव करेगी और उससे इसकी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। सो फाइंडिंग द पैरामीटर्स ऑफ दिस लाइन, दिस इज इन मैथमेटिक्स एंड स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे कैलकुलस और वो ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह टाइप के एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है जो कि हमने लीनियर अलजेब्रा वगैरह वाले कोर्सेज में पढ़ा हुआ है। So this is how it goes. बट सर, माय पॉइंट इज दैट कि इन वन ऑफ योर सेशन यू आल्सो सेड कि आपको अपने जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इशू है उसको सॉल्व करने के लिए यू शुड नो द मैथमेटिक्स। कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो बंदे आपको मिल जाते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इफ आई वांट टू बी अ गुड एआई इंजीनियर, तो मेरा फोकस ज्यादा मैथ्स की साइड होना चाहिए या कोडिंग की साइड होना चाहिए? मैथ्स के ऊपर होना चाहिए विदाउट अ डाउट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब ये जो फैशन कैंपेन है, ठीक है जी, इसके लिए हम जो है ना वो काम कर रहे हैं। सो 2 of my students are working on that. Now they are more proficient than me in coding, ठीक है जी। ओके। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज माई रोल? माई रोल इज कि जी कोड तो वो कर लेंगे लेकिन क्या कोड करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो क्या कोड करना है, दैट इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स।
और ये जो कोर्सेज है ना, ये तो अभी आपको जब आप इंशाल्लाह प्रोफिशिएंट हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये तो आपको बड़े आसान लगेंगे कि यार ये तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो चीज पढ़ाई थी ये तो बिल्कुल बचकाना सी है। मतलब एक स्टेज आएगी इंशाल्लाह वो, जब आपको लगेगा कि ये ना वो अब हम बड़े हो गए और हमें एडवांस चीजें आ गई। जब आपको एडवांस चीजें समझ आना शुरू होंगी तो देन यू विल रियलाइज कि यार कितना ट्रूथ था इस बात में, कि अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो एक्चुअली बाकी सब कुछ जो है ना वो इज द इजी इजी स्टफ। अगर आप मैथ लिख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप उसे कोड भी कर सकते हैं। बल्कि कोड So करने के लिए हो सकता है कि जीपीटी अब आपको कोड कर दिया करे। exactly. So Matt's going to give you the blueprint, जी and the coder would be like कि दीवार कहाँ बनानी है और जी पिलर कहाँ बनाना है, like जी that. जी, दैट्स अ वेरी गुड एनालॉजी। Okay, thank you. ओके जी, सो इफ वी हैव नो मोर क्वेश्चंस तो you know, I would beg your leave and thank you very much for good participation. सर जी सर मैं अभी जो है ना डेवऑप्स कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं जो है ना एआई में जा सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। डेवऑप्स इटसेल्फ इज अ गुड ट्रैक, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी, बट आप उसमें बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैंने जो है ना अभी एफए कंप्लीट किया है। ठीक है, सो आई थिंक आपके लिए बेहतर यही है कि आप जो है वो क्योंकि इसमें हमारे जो एआई के कोर्स में मैथमेटिक्स वगैरह काफ़ी है, सो आप अगर लेते हैं इसको तो आपको स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप थ्रू डेवऑप्स भी आते हैं तो आई थिंक इट शुड नॉट बी एन इशू, क्योंकि आपका फिर जो है ना वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल उस जगह पे पहुंच जाएगा कि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Sounds